You don't need a rich dad, you need the right mindset. I am Tushar Mittal, and this is 0 to X. We uncover the real stories of people who started with zero, no bank balance, no contacts, and built something unstoppable. Business, money, mindset, freedom. It's all here. So if you're ready to stop scrolling and start growing, let's go. Samir, how should I introduce you? We start from Chitkara, we start from Trideal, we start from Shoutlow, I think we start from You Engage. What do you feel like? Huh? Yeah. The man who wears multiple hats. No, I think I'm trying to reduce it now. So I think I was trying to do too many things. Uh-huh. So just trying to focus on lesser things in a more meaningful way. So, guys, I am Tushar and I run the podcast 0 to X, where today I have Samir Sharma, our local ecosystem hero, and let's chit chat about how he became successful from 0 to X, and let's find out all the meanings of 0 to X from him. Welcome to our podcast, Samir. Thank you for coming Tushar. over. Thank you for having me. So let's begin with your journey from Chitkara. What was your education at Chitkara? What degree were you pursuing? And then what eventually happened after that? So Tushar, I'll just go a step before that. So I come from a small town called Dinanagar. It's a border area town in Punjab. And fortunately, I come from a family of educationists. My mother has been a principal all her life. My father was a literature lecturer. So fortunately, education was always around us. But being in a small town, you always lack certain exposure, or I would say certain facilities in the region. So, but our parents ensured that we are well educated at least. At least they tried their best, and but as a kid, you always keep on wandering, and you always keep on having your own way of, I would say, rebel as a teenager, and all those phases. So I think I was kind of good at sports. I wanted to play sports for most of my time. I was one of the youngest national chess champion in 1994. Right, I was 8 or 9 years old. Right, wanted to pursue that, but again, due to whatever society pressure we all live in, it was still there at that point of time. कि आप थोड़ा पढ़ लो, थोड़ा इंजीनियरिंग कर लो, ये तो वेस्ट होता है. तो ये कहानी में ना कुछ कुछ चीज़ें काफ़ी आपके माइंड को आई थिंक इवॉल्व भी करती हैं, इम्पैक्ट भी करती हैं. राइट, सो काफ़ी कुछ होता है. आप एज ए 9 year old आप कितना ही कंट्रोल कर सकते हो ना. सो यू हैव टू जस्ट अबाइड बाय व्हाट वी डू. राइट, तो वो लेकिन फाउंडेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विच प्लेड अ वेरी की रोल इन लेटर पार्ट ऑफ माई लाइफ. राइट, सो schooling where you were 11th 12th, I was in Amritsar. Got to meet a few new people, so though that's my paternal place. Right, so but I'm born and brought up in Gurdaspur district, Dinanagar. Right, came to Chandigarh for my engineering, the phase that you were talking about. So Chitkara was pretty new at that point of time. It was a very second batch of the campus. Right, so you can imagine that again, I'm not among the top tier students at all. So I've always been a backbencher, and now a lot of people use it in a very proud manner, right? So, but while growing up, I think वो थोड़ा challenge भी होता है. But that's how I landed up in Chitkara. Good fun, yeah, right? Good 4 years, right? Staying in hostels, making a lot of friends. So those 4 years, I think from lesser from education perspective, but a lot more from exposure and social skills perspective, it has helped me a lot. Right, a lot of lifelong friendships again. My course was BTech. I was computer science because most of Punjab was doing it. Right, so a lot of people ask me that you took a right call by doing computer science and engineering. I said I never took a call. Right, it was more of again a social phenomena जो नॉर्थ में बहुत ज़्यादा prominent है unfortunately. When I started my engineering, so Punjab used to have 30 colleges. When I wrapped up my engineering, Punjab was having 100 plus colleges. Right, so that growth. Yeah, right? So in just 4 years span, I was pushed into engineering, or I wouldn't say pushed, but yeah, I was encouraged towards this because शायद
फैमिली में या एक्सटेंडेड फैमिली में कोई अच्छा बंदा था जो इंजीनियरिंग कर रहे उसका करियर अच्छा था, तो दैट्स व्हाई इवन वी वर टोल्ड कि ऐसा करना चाहिए, राइट. तो आई एक्चुअली मेंशन अ लॉट अबाउट इट बिकॉज now parents are much more open about those career choices. We do have more career choices. पहले तो ये था engineer है, doctor है, lawyer है, few other things, right? So I think even I just went with the flow and landed up here. That's it. So Chitkara में you pursued your engineering. From there on, you've always been an entrepreneurial mindset. तो उसके बाद वहाँ पे वो क्या हुआ, वो दिमाग में कौन सा कीड़ा था कि you want to build something? Yeah, I was actually meeting somebody day before yesterday. Exactly यही question आया. That when was the day or the moment or the year when I took a call कि एक entrepreneur बनना है. Trust me, I am not able to recall that. I think it was more of just building up things, right? So again, coming from that background, while my parents gave a very good education, right? रिसोर्सेज लिमिटेड थे, तो कहीं ना कहीं पे ना एक एस्पिरेशन यही होता है कि ओके फाइनेंशियली वी शुड बी डूइंग बेटर, राइट. उन्होंने जो करना था पेरेंट्स ने कर दिया, उसके बाद जो करना है वो हमें करना है. आई थिंक ये क्लैरिटी थी मुझे, राइट, कि आई डोंट हैव अ बैकअप प्लान, राइट. बिजनेस करना है, मुझे लगता पूरा इंडिया इस बारे में बात कर रहा था, राइट. एंटरप्रेन्योर वर्ड शायद हमें प्रोनाउंस भी करना नहीं आता था. स्टार्टअप्स तो आई थिंक वर्ड ही लाइफ में बड़ी लेट सुना, राइट. Yes, but during college days, and I encourage a lot of interns now or freshers coming to us, or while I go to campuses, कि वो जो कॉलेज के अंदर एक्टिविटीज़ होती हैं, आपके कल्चर फेस्ट होते हैं, आपकी सोसाइटीज़ होती हैं, वो बहुत अंडररेटेड है एट टाइम्स, राइट. येस, उस टाइम अच्छा भी लगता है, लेकिन उसका आउटकम बहुत अंडररेटेड है. दैट गिव मी लॉट ऑफ एक्सपोजर, राइट. सो आई वाज जस्ट पार्टिसिपेटिंग इन व्हाटएवर आई कुड डू, राइट. पढ़ने में ठीक था, ध्यान जितना कर था तो था, बट इज़ वेरी प्रोएक्टिव इन दो सोसाइटीज़, राइट. उनके थ्रू पहली बार लाइफ में मैंने स्पॉन्सरशिप्स लाना सीखा था, राइट. सो और आई वाज व्हाट 17 years or probably 18 years, right. And I was in Chandigarh. I was going to Sector 34 to a lot of institutes कि सर कैंपस में आइए, इवेंट हो रहा है, राइट, इतना फुटफॉल होता है, ये होता है, ऑल ऑफ सेम थिंग्स विच आर स्टिल हैपनिंग, राइट. बट वो छोटी चीज़ों ने थोड़ा बिल्टअप करना शुरू कर दिया, थोड़ा कॉन्फिडेंस देना शुरू कर दिया, और कहीं ना कहीं पे उसमें एक थोड़ा सा गलत एंगल भी बिल्टअप हो रहा था. बट अगेन दैट्स हाउ योर डेस्टिनी वर्क्स, राइट. बीइंग अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, आई वाज लिटरली रनिंग अवे फ्रॉम कोडिंग, राइट. सो मैंने अपने आप को समहाउ कन्विंस कर लिया था कि नहीं, मैं लोगों से बात कर सकता हूँ, आई कैन कम्युनिकेट, राइट. सो मैंने 2-4 स्पॉन्सरशिप लाइफ में लेके आया हूँ, तो मैं तो बिजनेस या सेल्स कुछ ऐसा करूंगा. आगे नहीं पता क्या होने वाला, पर उतने से जितना प्रीव्यू मेरा था लाइफ में, तो मैंने ये अपने बारे में एक सोच बनानी शुरू कर दी. सो while most of my classmates, of course, they were coding well, doing well in a lot of other things, मैंने बोला नहीं यार, चलो ठीक है, कंप्यूटर साइंस में कुछ तो करना ही है, तो मैं ना वो CCNA नेटवर्किंग करूँगा, मैं रेड हैट सर्टिफिकेशन करूँगा, इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, राइट. बट आई थिंक दैट वाज जस्ट माय escape, right. I just wanted to run away from coding for some reason. तो ये चल रहा है, राइट. ये कहानी में कोई थॉट नहीं है अभी भी कि बिजनेस होगा, स्टार्टअप होगा, एंटरप्रेन्योरशिप होगा, राइट. फॉर्चुनेटली इन माय थर्ड ईयर, राइट, the whole India's ecosystem now, if you try to look back, right, you also come from, you worked a lot with telcos in the past, right. So that was the time telcos, IT services started booming in India. I'm talking about 2005, 6, 7 kind of time. So mine was 2003 to 7 batch, right. So I got placed in 2006, right. So HCL was the very first company coming to my campus, and I got placed, right. Analytically, probably I think I was doing fine, right. But more importantly, Chitkara invested a lot in us, right. So for good, I think 6 months or probably 2 semesters. So they appointed an external team, right, and a huge curriculum was built, right, about analytical skills, about technical skills, about interview skills, about GD skills, right, and we were made to go through it, right. वो हुआ, fortunately I got placed. Another company came, Tech Mahindra, I got placed. Infosys came, I got placed, right. उसके बाद मैंने बैठना बंद कर दिया because there were a lot of other batchmates जो नहीं प्लेस हो रहे थे. तो जो हम लोग प्लेस हो गए थे with multiple offers, we took a collective call कि हम नहीं बैठेंगे, because अब होना क्या शुरू हो गया था कि एक तो हमारा confidence is
स्काई रॉकेटिंग कि एक बार इंटरव्यू क्रैक कर लिया तो यू आर एबल टू डू इट अगेन एंड अगेन. ऑल्सो व्हेन आई हैव अ फ्यू ऑफर्स इन माई हैंड एंड आई एम टेलिंग दिस टू अ नेक्स्ट इंटरव्यूअर, तो उनके दिमाग में परसेप्शन है कि इसने 3 इंटरव्यू क्लियर किया है तो ठीक ही होगा, लेट्स मूव ऑन. एंड देयर वाज अ एरा जहाँ पे बल्क में बहुत सारा मास हायरिंग होता था. एक कैंपस में एक कंपनी आती थी और 100 बच्चे जा रहे हैं, 200 बच्चे जा रहे हैं. चित्कारा became the hub of it, right? So all the campus recruitment activities started happening in that campus, right? So सारे पंजाब के campuses आ रहे हैं, right? There used to be at times 4,000 people in that campus. उस टाइम ये अकाउंट बहुत बड़ा था. आज के में चित्कारा के अपने ही 15,000 20,000 बच्चे कैंपस में होते हैं. तो सो आई टुक अ कॉल कि नहीं करेंगे, राइट? बट ये सारी चीज़ों ने कहीं ना एक अगेन लाइक ऐसे बिल्डिंग अप करना शुरू कर दिया, थोड़ा कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया. आई गॉट टू वर्क विद चित्कारा's कैंपस रिक्रूटमेंट टीम. वी यूज्ड टू बी लेड बाय कविता तरागी, so she is still around. So that was my very first job, right? So I started getting a stipend for the first time as a hostler. That's like a gold mine. It used to be $3,000, but it was a gold mine for me. Right, I never told my parents कि मुझे स्टाइपेंड मिल रहा है. So as a hostler ये छोटी चीज़ें ना एड अप होनी शुरू रहती है. अगेन यहाँ पे कोई माइंडसेट नहीं है, अभी कोई डेवलप हुआ कि बिजनेस होगा, कुछ और करना है. हाँ ये होगा कि हाँ कुछ आ रहा है. सो वो कम्युनिटीज़ का थोड़ा सा एक्सपोजर, स्पॉन्सरशिप का एक्सपोजर, working in a recruitment cell का exposure, when HRs from lot of companies from different cities were coming, right? And golden era from hiring, right? So people from community estates, Hyderabad are coming, Wipro is coming, Infosys is coming, right? Centel is coming, a lot of companies. So in a month, at times, 10 recruitment drives happening, right? So again, I got to meet a lot of interesting people while I was in Chandigarh, right? I got to see a lot of those perspectives. ये करते करते इंजीनियरिंग खत्म हो गया, राइट? और कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा मेरे को ये लगना शुरू कि मैं कुछ बेच सकता हूँ. सो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई कन्विंस्ड 2 or 3 ऑफ माई अदर जूनियर्स, नॉट द बैचमेट्स, हु वर पार्ट ऑफ दैट कैंपस रिक्रूटमेंट टीम, राइट? कि हम एक वेबसाइट बनाते हैं, हम ना SMS बेचेंगे. So that was the very first business of mine way back in 2006 or 7. मैंने 10,000 रुपये इकट्ठे किए, वही जो मेरे को स्टाइपेंड मिलता था. मैंने उसे एक वाइट लेबल रीसेलर SMS पैनल खरीदा, राइट? और वही लोग जिनको मैं स्पॉन्सरशिप के लिए जाता था सेक्टर 34 में, राइट, उनको मैं जाके थोड़ा बहुत बेचना शुरू कर दिया. अनफॉर्चुनेटली पीपल बिलीव मी नाउ व्हेन आई लुक बैक. सो मुझे लगता है कि ये शायद मेरे पास एक 18 साल का बच्चा वो प्रोडक्ट बेचने आएगा तो क्या मैं उसको पैसे दूंगा कि नहीं दूंगा, राइट? पर थोड़ा बहुत वो चीज़ें वहाँ से किक इन होनी शुरू हुई, बट दैट वाजंट इनफ, राइट? सो इवन दोज जूनियर्स ऑफ माइन, सो दे मूव्ड ऑन. कुछ हो गया, प्लेसमेंट हो गया. I somehow kept that portal and domain with me, right? And मैंने इंजीनियरिंग खत्म होते होते अपने पेरेंट्स को बोला कि मैंने ऐसा कुछ कर रहा हूँ. तो उस कंपनी का नाम था noisesinfoway.com समथिंग. तो पेरेंट्स सेड कि बिकॉज ऑफ कोर्स दे कम फ्रॉम नॉन बिजनेस बैकग्राउंड, और हर पेरेंट का एक इच्छा तो ही होती है ना कि बच्चा हमारा स्टेबल रहे, कुछ भी एक बहुत स्पाइकी एनवायरनमेंट में ना रहे. और वो एरा इंडिया का ऐसा था कि जहाँ पे बिजनेस को ना ऐसे देखते रहे थे सारे कि इसके लिए बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए, कि पता नहीं कितने लाखों करोड़ों रुपए लगेंगे. तो एक बिजनेस नाम की चीज़ है कोई, राइट? कोई बहुत बड़ा राक्षस है, राइट? उसको तब जाके खड़ा किया जा सकता है. इट कांट बी डन. And plus, it has always been perceived as risk. Huge risk, right? So, and coming from that background, risk is not something which was coming very natural to us. And risk led to fear. Exactly. So I think उस time में ना जो families थी वो चाहती थी कि यार घर में stress नहीं हो. We have been through a lot of financial challenges. तो safe चलो जिंदगी में. I think वो देखो एक country का भी ना एक journey है. Right, so we are practically third generation after independence, right? तो शायद एक generation का वो पहला phase था. Second generation ने थोड़ा built-up किया. We were the first generation of, I mean the third generation, but the first generation to start leveraging a bit. लेकिन parents के fears कहीं ना कहीं पे exist करते थे कि यार बड़ी मुश्किल से तो ये हुआ है, right? यहाँ से भी कहानी derail ना हो जाए, right? So they convinced me कि नहीं आप रहने दो, right? So there are a lot of people, बहुत रिश्तेदारों के बच्चे हैं, फ्रेंड्स के बच्चे हैं जिनको जॉब्स नहीं मिल रही. आपके पास 3 जॉब्स हैं और आप कह रहे हो आप बिजनेस करना चाह रहे हो. तो इवन आई गॉट कन्विंस, ऑनेस्टली मेरे पास बहुत कोई कन्विंसिंग
काउंटर नहीं था और थोड़ा मेरा एजुकेशन लोन भी था, राइट. सो आई सेड हाँ ठीक है, आप सही कह रहे हो. तो आई वेंट टू HCL एंड अभी भी ये सारी कहानी में वो 2007 चढ़ चुका था. थोड़ा सा वो SMS बेचने का एक्सपोजर हुआ था, बट नो प्लानिंग एट ऑल, राइट. सो वेयर आई वुड से कि नहीं, ये मेरे को स्टार्टअप का कोई कीड़ा हो गया, कुछ नहीं हुआ था अभी तक, राइट. सर एक ही कीड़ा था शायद कि वो लोन खत्म करना है, राइट. तो HCL इज गुड एक्सपोजर, राइट. और जो मैं पहले आपको बता रहा था मैं कोडिंग से भाग रहा था, मैंने वो अपना HCL जाके वर्क करा रखा. सो आई वेंट टू HCL Tech and I fought with the HR that I don't want to stay in HCL Tech, right. Please move me to the other division called HCL Comnet, which was their ISD division, infrastructure division, right. And HR was kind of shocked कि बच्चे Comnet ज्वाइन करते हैं and they send applications, can we please move to HCL Tech, you want to code. आप यहाँ प्लेस हो गए, आप कह रहे हो आपको वहाँ मूव कर दें, तो आई एम मोर देन हैप्पी टू डू इट. तो HR का ये फीडबैक है, हाँ बहुत अच्छी बात है. सो शी अग्रीड, आई वाज मूव्ड इनटू HCL Comnet. वहाँ मुझे अगेन आई थिंक दैट लक प्लेज अ बिग रोल एज वेल, आई विल नॉट टेक क्रेडिट फॉर इट. बेंच IT सर्विसेज में होता है बहुत, राइट. मैं कभी बेंच पे नहीं बैठा. विद इन अ मंथ आई हैड अ प्रोजेक्ट, राइट. आई वाज ओनली फ्रेशर उस टाइम पे उस टीम में, और अपनी ओर से तो मैं इंफ्रास्ट्रक्चर डिवीजन में गया था, राइट. अब वहाँ आपकी डेस्टिनी किक इन करती है. नाउ व्हेन लुक बैक एंड आई लाफ एट इट लिटरली कि मैं कोडिंग से भाग रहा था 4 साल, मैं HCL में भाग रहा था कोडिंग से, HCL Comnet में गिरा. विद इन अ मंथ मुझे एक प्रोजेक्ट मिल गया. उस प्रोजेक्ट में इतने बड़े टीम में आउट ऑफ नोवेयर एक सुबह हमारा US बेस्ड क्लाइंट कहता है कि ये कैन यू गिव मी अ कोडर, राइट, टू माय प्रोजेक्ट मैनेजर और सर्विस डिलीवरी मैनेजर, राइट. सबने देखा कि एक मुर्गा है वहाँ पे, एक फ्रेशर है, राइट, ठीक है. तो इसको मुर्गा बना सकते हैं बिकॉज पूरे प्रोजेक्ट में पूरे फ्लोर पे कोडर तो कोई था ही नहीं. द होल फ्लोर वाज इंफ्रास्ट्रक्चर डिवीजन टीम, राइट. तो मुझे आगे क्लाइंट के कर दिया गया कि हियर इज अ कोडर, राइट. सो अब मेरी लाइफ में डिलेमा आया है कि ओके दिस इज समथिंग आई हैव बीन रनिंग अवे फ्रॉम और दिस इज अ पिट आई हैव फॉलन इनटू, राइट. तो बट आई थिंक देन इट टुक इट एज अ चैलेंज, राइट. तो उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों हुए उसके बाद में, बिकॉज जब मेरे पास में कोई सीनियर्स नहीं थे जिनसे मैं कोडिंग सीख पाता, राइट. कॉलेज में मैंने कोडिंग किया नहीं था, चैट GPT नहीं था, राइट. गूगल भी ठीक है जितना था सो था, तो मैं थोड़ा बहुत खुद करता था. एंड another junior of mine, you might be knowing him, he's the founder of SchoolPad. So SchoolPad is a very popular school ERP now. Abhiraj is the founder. He was very good coder, right. And मैं उसको जॉब में से कॉल करता था कि अभिराज मैं ये कैसे करूँ, ये कैसे करूँ. So these were my 6 months जब मैं कोडिंग सीख रहा था, कर रहा था. Again somehow that client got impressed किया that probably the kid is hardworking and you know कर लेगा. तो next demand client ने बोला कि can you send Sami to US, right. We want to deploy him there. तो मेरे SGM ने, मैनेजर ने बोला कि we have a strict policy till the point the employee is not 1 year experience, we cannot put the application for visa. So client came back saying can you please send him to US. नहीं तो हो सकता है कि we will not agree to your other terms. अब मुझे नहीं पता उसने क्या देखा होगा, उसने क्या सोचा होगा, but that was a very strong statement for a fresher, right. So within I think 9 or 10 months of my career I was sitting in Bay Area, right. That further gave me a lot of exposure, right. So ये building up था, ये कोई एक single moment नहीं था कि जहाँ पे ना सब कुछ हो गया. Yes, Bay Area में जाके I got a lot of exposure. Facebook was used to be one building company on Stanford Street उस टाइम पे. Yahoo was still around, right. So Android Droid होता था, right. So उसका एक ऐसे QWERTY कीबोर्ड के साथ ही उस टाइम पे डिवाइसेस आते थे. तो iPad मैंने फर्स्ट वहाँ पे लॉन्च होता है मेरे सामने देखा. तो वो सारी कहानी में आई गॉट इंट्रीग्ड इन अ लॉट ऑफ पॉजिटिव वे. तो मुझे पता नहीं कहाँ से ये क्वेश्चन आने शुरू हो गए कि यार ये यहाँ पे हो रहा है तो वहाँ क्यों नहीं हो सकता, राइट. तो और लाइबिलिटी कोई थी नहीं लाइफ में, एक एजुकेशन लोन था वो हो गया, राइट. ठीक है, वही जब फर्स्ट टाइम भेजा ना मुझे थोड़ा बहुत US डॉलर्स मिले तो मैंने इंडिया में लोन उतार लिया. तो मुझे नहीं पता आज तक वो करेज कहाँ से आया, राइट. ठीक है, और शायद मैं आज वो रिस्क ना ले पाऊँ बिकॉज विद टाइम विद लाइफ
यू बिकम वेरी ओवर कैलकुलेटेड, राइट. सो वो कैलकुलेशन नहीं आ रहा था दिमाग में. तो मेरे दिमाग में यार ये तो यहाँ हो रहा है वहाँ भी कर लेंगे, राइट. शायद मेरे पास राइट कंपैरिजन भी नहीं थे कि वहाँ पे इंटरनेट स्पीड वाज वे बेटर, वहाँ टैलेंट वाज वे बेटर, इकोसिस्टम वाज वे बेटर, और मैं यहाँ पे कह रहा हूँ इंडिया में तो हो ही जाएगा, राइट. ठीक है. प्लस एक और नोशन पता नहीं कहाँ से बिल्टअप होना शुरू हो गया, बिकॉज द सिटी विच आई कम फ्रॉम, all my cousins, my friends, the whole town, the whole district is practically not living in India, right? कोई कनाडा, यूएसए, वो काफ़ी कुछ है. एक वो इंक्लिनेशन पता नहीं कहाँ से आई, राइट. ठीक है, कि एक कोई तो शायद कुछ मूवमेंट हुआ होगा मेरे साथ. सो आई स्टार्टेड फीलिंग कि यार ये क्यों यहाँ पे लोग आ रहे हैं, राइट. ठीक है. और शायद मैंने पैसे खर्चे होते तो मैं भी ना करता. नाउ व्हेन आई लुक बैक, बिकॉज HCL फंडेड माय visit over there, whatever 2 years I lived over there. शायद मैंने भी ज़मीनें बेची होती, शायद मैंने भी उसके लोन लिया होता, तो मेरा पर्सपेक्टिव कुछ और होगा. सो नथिंग अगेंस्ट whoever is doing it, बट कहीं ना कहीं पे ये इंक्लिनेशन बिल्ड होना शुरू हो गया कि यार ये क्यों आ रहे हैं सारे यहाँ पे. और मैं जितने इंडियंस को वहाँ पे मिल रहा था, वहाँ मैंने एक थीसिस बनाया. स्टूपिड था शायद, अच्छा भी था, कुछ आज भी वैलिड है. तो मैंने ये सेंस करना शुरू किया कि यार जो लोग भी इंडिया से आ रहे हैं, पंजाबी स्पेशली, राइट, वो 3-4 बकेट्स के लोग हैं. कुछ लोग हैं जो इमीडिएटली आफ्टर 12th और ग्रेजुएशन वहाँ पे आते हैं, राइट. और कोई ज़मीन बेच के आया, कोई लोन लेके आया. तो अब उसके ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर है कि यार ये तो पैसा खर्च हो गया, तो मैं अपने पेरेंट्स को क्या मुंह दिखाऊंगा, आई कैन नॉट गो बैक, राइट. एक सेकंड बकेट है जहाँ पे शायद पैसे की प्रॉब्लम लाइफ में कम थी, बट वहाँ से इंडिया से प्रेशर आ रहा है कि रिश्तेदार क्या बोलेंगे, सोसाइटी क्या बोलेगी, कि आपका बेटा, आपकी बेटी वापस आ गई, उससे इतना हैंडल नहीं हुआ. तो एक वो फोमो आया. एक थर्ड बकेट आई जिसमें यंग पीपल वेंट ओवर देयर, फिर दे गॉट मैरिड, दे मूव्ड ऑन द नेक्स्ट फेज. अब वो वापस आना चाहता है, वन ऑफ पार्टनर, द अदर पार्टनर सेइंग नो माय लाइफ इज गुड, राइट. वो स्टक हो गया. फिर एक फेज आता है, बच्चे हो जाते हैं, ना किड्स आर सेइंग वी आर नॉट इवन इंडियंस, सो व्हाई आर वी इवन हैविंग डिस्कशन कि इंडिया वापस जाना है. तो ये साइकिल चला हुआ है, राइट. ये एक्यूमुलेट होते होते एट स्केल एक प्लेबुक बन गया, राइट. सो वो मेरे को उस टाइम पे खटका कि यार आई एम जस्ट 21 years old, कोई लाइबिलिटी नहीं है लाइफ में, मैं अभी प्लग आउट नहीं हुआ तो मेरे साथ भी होने वाला है. तो आई केम बैक, राइट. थोड़े से पैसे थे, लाइबिलिटी जीरो, 20 years old में you can take stupidest of the risk, right? You don't care. I came back and I was trying to build something like Groupon in Delhi, right? Or again stupid, honestly. Now when I look back, stupid. क्यों? Because मेरे पास बहुत deeper business experience नहीं था. Yes, शुरू का थोड़ा सा zeal था, लेकिन अब मैं अपने आप को सोच रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छा कोडर बन गया हूँ, राइट. थोड़ा देर कोडिंग करके मेरे को तो प्रोडक्ट बनाना है, कोड करना है, और मैं इंडिया आके पता नहीं एकदम से आई जस्ट गो मूव, राइट. थोड़े दिन किया तो रियलाइज हुआ कि नहीं है, और फॉर्चुनेटली तब तो जॉब नहीं छोड़ी थी, राइट. ठीक है. सो आई हैड फ्यू ऑफर्स, मैं इधर हाथ पैर मारना शुरू हो गया. आई गॉट एन ऑफर फ्रॉम अ कंपनी, अगेन डेस्टिनी, विद इन अ वीक मेरे को ऑफर मिला, विद इन अ वीक फ्लिपकार्ट ने उनको एक्वायर कर लिया. उन्हें सारे ऑफर्स रिवोक कर दिए, राइट. तो ये ठीक है, नहीं है. I came to Chandigarh for some reason. Again, it doesn't have any rational. So I was supposed to go to my hometown for Diwali, right? आप दिल्ली से दीनानगर जाते हो तो चंडीगढ़ रास्ते में नहीं आता, right? The route is like Ambala, Rajpura, Jalandhar, Ludhiana, and so on, right? So Chandigarh is a detour. But just for sheer emotional reasons, because I stayed here for 4 years, I wanted to be here and probably meet some friends. तो मैं यहाँ पे आया दिवाली से पहले, एंड 43 बस स्टैंड नया नया बना था, और तब ये स्ट्रक्चर था कि 17 बस स्टैंड है, 43 बस स्टैंड, इफ यू रिमेंबर. उस टाइम पे दोनों काफ़ी बिजी थे. अब तो धीरे धीरे मोस्टली 43 में हो गया. तो दिल्ली से 17 आता है, राइट, और फिर 43 से पंजाब जाता है, करेक्ट, राइट. तो मैं 17 उतरा, मैंने उधर जाना शुरू किया. आई पिंग्ड मिस्टर मोहित चतकारा, राइट. सो कि भैया आई एम इन चंडीगढ़, तो इफ़ यूर अराउंड लेट मी नो. ऑफ कोर्स मैंने उसका रिप्लाई नहीं आएगा बिकॉज बिजी का है. मैं जा रहा हूँ सडनली कॉल आया, कहाँ पे है. कहते हैं अच्छा ऑफिस आया, फ़ोन रख दिया. तो आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हिम, एंड ही हैज़ प्लेड अ वेरी की रोल इन दोज ग्रोथ ईयर्स. ही वाज द वेरी फर्स्ट वन टू गिव मी दैट इंटर्नशिप and that campus placement thing, all those things, right? HCLB and the whole campus recruitment team, right? So which was practically my first professional experience, right?
तो मैं वहाँ जाता हूँ और एक मीटिंग चल रही है और वो मेरे को बाद में डॉट्स कनेक्ट होते हैं कि वो मीटिंग ट्राई डील के लिए चल रही है। तो वो कहते हैं हाँ बैठ, ठीक है मैं मिलता हूँ अभी। इन द मीन वेल डॉक्टर अशोक चित्कारा जस्ट इज रोमिंग इन द लॉबी एरिया। तो मैं मिला उनको, मैं हाँ बैठो बैठो बैठो, एंड आउट टू नो वे बातें हो रही हैं। एंड अशोक सर वेरी ग्राउंडेड पर्सन, राइट। तो मेरे को ये शायद उनको बात भी याद नहीं होगी अब तो, इट्स यू नो टॉकिंग 2012, 13 साल हो गए बात को। से सभी चंडीगढ़ में लाइफ बड़ी अच्छी है ना, थोड़ा लाख रुपए तक भी मिल जाए और घर बन जाए फिर तो बहुत ही अच्छा है। ऐसे बात तो अच्छी है बट कहाँ है इतनी जॉब्स, तो नहीं तो आ जाए यहाँ पे। सो दैट वाज यू नो जस्ट आउट ऑफ नोवेयर। तो एंटोनी की यार मोहित एंड टीम आर वर्किंग ऑन समथिंग, ठीक है तो तू आ जा, ठीक है। एंड ही टुक मी टू दैट रूम, ओपन द डोर एंड एवरीवन इज इन द मीटिंग एंड टोल्ड मोहित चित्कारा कि समीर ना हमें ज्वाइन कर रहा है, ये जो तुम जो भी बना रहे हो उनको पता भी नहीं था क्या बना रहे हो, तुम जो भी बना रहे हो वाज द वर्ड, ये ना इसमें आ जाएगा। अभी सारी ऑफ कोर्स मोहित चित्कारा वाज आल्सो हाँ यस सर यस सर यस सर। सो अभी सारी कहानी मैं सोच रहा हूँ, आपने भी बोल दिया, आपने भी बोल दिया, किसी ने मेरे से पूछा do I want to come back, right? Okay. But honestly, I saw there as an opportunity. So that meeting was actually about TriDeal. So TriDeal is not my idea. Was never my idea. मैं similar idea Delhi में कर रहा था, right? So TriDeal was already conceptualized with 2 other founders, pretty senior guys, right? I was 24, I think, yeah. So one of the founder was 42 already, pretty experienced, ex-Quark. Another guy took a recent exit. उस टाइम में exit लेना भी एक अच्छी काफ़ी बड़ी चीज़ थी। Moved from Delhi to Chandigarh for this venture, right? And I was just supposed to do the tech, but कहानी कुछ unfold हुई, those people moved on, उनको नहीं देखा। तो ये ऐसे built up होता होता मेरी लाइफ में accidental entrepreneurship हुआ है, right? So there is no such moment कि मेरे को एक सुबह लगा कि ये कीड़ा है और I'm just gonna do it for rest of my life. Excellent. मतलब एक ऐसी story है which you know just built itself. Yeah, I think it's still building. So there's so many such fascinating छोटे छोटे moments और I think सबके साथ होते हैं, right? ठीक है, and जब आप उस moment के अंदर होते हो आपको नहीं realize होता, right? That how critical or how life changing this very moment can be, right? अब मैं शायद उसका पोस्टमार्टम कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू जस्ट यू नो हैव एन इंट्रोस्पेक्शन कि क्या हुआ कैसे हुआ, तो मैं शायद डॉट्स कनेक्ट कर पा रहा हूँ। बट उस टाइम पे तो आई थिंक आप जिस फ्लो में चलते हो, राइट, ठीक है। फॉर्चुनेटली आई थिंक आई हैव बीन एम्ब्रेसिंग व्हाट एवर केप्ट ऑन कमिंग। बहुत सारे फेलियर्स हैं, ये तो शायद मैं सिर्फ हैप्पी थिंग्स बता रहा हूँ। सो बहुत यू नो बैकलैशेस हुए हैं, बहुत सारे स्टेप बैक्स भी लेने पड़े हैं, बट आई थिंक इट हैज बीन रियली फन सो फार। So tell me something. You know, your journey has been linear in terms of आपको opportunities आती रही, doors kept on opening, and you know embraced whatever came on way. What was your mindset about money? You know, from your education, from your family background, were you ever bent upon कि यार जो मर्जी हो जाए मेरे को तोड़ के पैसा कमाना है? या you were saying कि I would want to live a comfortable life, जो मिले मैं कमाऊंगा, अच्छा कमाऊंगा, but I'll live a comfortable life, or you had something you know insane in mind? Again पैसा तो चाहिए था, right? Because like I said कि parents have put lot of hard work, right? So उन्होंने जितना कमाया ना, उन्होंने यहाँ तो मेरे सिस्टर की एजुकेशन पे लगा दिया और बाकी शायद यू नो सिस्टर की शादी पे लगा दिया होगा, एंड सब कुछ लगा दिया उन्होंने अपना, राइट, ठीक है। तो उन्हें अच्छे से हमें पाला, बट वी वर प्रॉब्ली, मेरे को नहीं पता वो क्या ब्रैकेट होगी, लोअर मिडिल क्लास होगा क्या मिडिल क्लास होगा, राइट। तो पैसा खुला तो नहीं था, पैसे की तंगी थी हमेशा, राइट। तो इसलिए पहला गोल तो दिमाग में यही होता है कि यार ये हर्डल तो खत्म करें, राइट, ठीक है। तो पैसा मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा, आई एम वेरी वोकल अबाउट इट कि येस मनी हैज़ बीन वन ऑफ द ड्राइविंग फोर्स। शुरू में तो ये था, लेकिन फिर उसमें मैंने कुछ एब्सर्ड स्टेप्स भी लिए हुए और मल्टीपल टाइम लिए। जब मैं यूएस से वापस आया, वॉलंटियरली वापस आया, आई वाज गेटिंग 2 सैलरीज। मेरे को इंडिया में सैलरी भी आती थी, मेरे को यूएस में यूएस डॉलर्स आ रहे थे, राइट। और मैं उस एरा में था जब एवरीवन इज गोइंग टुवर्ड्स यूएस। मैं उस टाइम पे वापस आया
क्योंकि शायद मेरे को वहाँ जाके ना ये थोड़ा काम करके टू अर्ली था, अगेन कैन बी स्टूपिड, आई नो, राइट, ठीक है। तो मेरे को ये रियलाइज हुआ कि यार शायद थोड़ा कुछ तो मैं सीख पा रहा हूँ, आई हैव थोड़ा सा राइट एटीट्यूड। मेरे को एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं पता थे, मेरे को ये कॉन्फिडेंस अंदर से आ रहा था, ये तो मैं इसको अब वर्ड्स में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मेरे को अंदर से कॉन्फिडेंस आ रहा था कि यार ठीक है, बचपन जैसा मैंने देखा था, मेरे पेरेंट्स ने इन्वेस्ट कर लिया, अब पहली बार पैसा मिलना शुरू हुआ है, लेकिन जो भी मैं अब तक करता आ रहा हूँ उससे ये तो लग रहा है कि भूखा तो नहीं मरूंगा, राइट, ठीक है। तो पंगे ले सकते हैं, राइट, ठीक है। ये मैंने एक बार तब किया 2011-12 में, सेकेंड टाइम मैंने 2018 में भी ये किया, व्हेन द ट्राइडल एक्विजिशन हैपेंड, मूव टू बैंगलोर, देन वाज पार्ट ऑफ पेटीएम, राइट, एंड आई रजिस्टर्ड शाउटलो एंड यू एंगेज, वांटेड टू कम बैक, और आई वाज प्रीटी वेल पेड, राइट। सो मुझे लगता है शायद मेरी एक्सपेक्टेशन और कैपेबिलिटी व्हाटएवर शायद उससे ज़्यादा ही दे रहे थे, तो मुझे शायद ना कंफर्ट से थोड़ा सा है, राइट, ठीक है। इट गॉट टू कंफर्टेबल फॉर मी कि आ रहा है पैसा बस, राइट, ठीक है। एंड आई पुट माई पेपर एंड आई रिमेंबर अ वॉक ऑन द पेटीएम का फ्लोर विद विजय, एंड ही वाज कन्विंसिंग मी कि आई नो वंस एन एंटरप्रेन्योर इज ऑलवेज एन एंटरप्रेन्योर, तो क्यों जा रहा है। तो आई सेड जो मैं कर रहा हूँ ठीक है, बढ़िया है, ठीक है, बट not feeling very great about it, and मैंने ये steps ले लिए, and there are few people who resigned from the jobs, मेरे कहने पे वो चंडीगढ़ में ऑफिस लेके बैठ चुके हैं, तो तब भी उनका एक काउंटर आया, कहते उनको भी हायर कर लेते हैं, राइट, ठीक है। तो बट मुझे लगा मैं कि नहीं यार ये अब मैं नहीं करूँगा ना तो फिर नहीं मैं कर पाऊँगा, राइट, ठीक है। येस, फॉर्चुनेटली उस टाइम पे आई वाज मैरिड बट आई डिडंट हैव एनी किड्स, ये सारे फैक्टर्स भी ना बड़ा क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं इन योर रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी। पहले तो कोई लाइबिलिटी नहीं थी, आई वाज 21, 22, 24, राइट। 2018 में आई वाज 32, राइट, नो किड्स, राइट। एक घर ले लिया था हमने, एक वो सपना होता है हर मिडिल क्लास बच्चे का, मैंने वो ले लिया था, एक फ्लैट हमने कहीं लिया था, तो उसके लोन खत्म कर लिए थे, तो हमें लगा यार बहुत कुछ है, कर लेंगे, राइट। तो मनी हैज़ बीन अ ड्राइविंग फोर्स, आई वुडंट से अभी भी है, राइट, ठीक है। स्पेशली अगर आप उस बैकग्राउंड से आते हो ना कि वो आपको कम मिला होता है, तो आप हमेशा कहते हो नहीं यार इसके लिए तो मेहनत कर सकते हैं, राइट, ठीक है। बट येस, मुझे ये भी लगता है कि दिट कैन नॉट बी द ओनली ड्राइविंग फोर्स, राइट, ठीक है। एटलीस्ट इन माई केस, कई लोगों के केस में काम कर जाता है, राइट, ठीक है। मुझे जब तक वो ना पर्पस कनेक्ट नहीं होता तो आई एम नॉट एबल टू गो वेरी फार इन दैट, राइट। सो आई थिंक आई विल डिटैच माई सेल्फ वेरी क्विकली, और मैंने किया है, मैं 2 बार डिटैच कर चुका हूँ, दोनों बार अच्छा पैसा मिल रहा था, 2 जॉब्स ही पर दोनों बार अच्छा पैसा मिल रहा था, राइट। कि जब मैं यूएस से वापस आया तो ऐसा तो नहीं था मुझे एग्जैक्टली वही पैसा मिल गया होगा, कम ही मिला था, राइट, ठीक है। और जब मैंने पेटीएम छोड़ा और अपना काम शुरू कर लिया फॉर मोर देन 2 years, मैं उस नंबर पे आ ही नहीं पाया। There were people in my company who were being paid more than whatever छोटा सा टोकन I was taking home, right? तो इसलिए पर्पस थोड़ा सा तो चाहिए मुझे, राइट, दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन। बट अगर आप एक बिजनेस कर रहे हो, राइट, ठीक है, तो मुझे लगता है फॉर योर ओन रीजन एंड for the reason for stakeholders around you, those can be your investors, right, more importantly your co-founders, more importantly your own team members, right. पैसा तो चाहिए, आप कैसे करोगे, नहीं तो this is one tool, उसके बिना फंक्शन ही नहीं कर सकते। तो money has always been one of the very core factors, but not the factor. Currently, what is that project which you are completely focused on? Whatever we have been doing or personally have been doing for last 12-13 years, उसमें ना एक common theme है अभी तक, it's hyperlocal small businesses and tech, right. ये 2 चीज़ें ही समझ आती हैं कि टेक के थ्रू hyperlocal small businesses की लाइफ में आप क्या कर सकते हो, राइट। फूड उसमें से लो हैंगिंग फ्रूट रहा है टू सम एक्सटेंट, शुरू में नहीं था पर करते करते वो कब बन गया, राइट, ठीक है, बस हो गया, right. So food के around we do lot of things. I'm sure इस Zomato Swiggy के आने के बाद when people could realize that an app based system can be developed, probably that could be one tipping point. I don't know. That was the starting point of YouEngage. Yes. So because from 2012 TriDeal was also an aggregator, right. The food delivery नहीं था, the deals platform था, right. When I sold that company, so Little Lab was way larger. They had $50 million. We were competing with Nearby. Okay, $20 million. It was always just matter of time
कि अंकुर वारिको के पैसे कब खत्म होएंगे और ये मर्जर होगा. इट हैपेंड. हम्म. सो पेटीएम ने वो तीनों कंपनी एक्वायर कर ली, वो सब कुछ हो गया. राइट, ये सारे टेन्योर में आई थिंक वी स्टार्टेड सेंसिंग कि एग्रीगेटर तो हम भी हैं, बट हम कभी आर्म ट्विस्टिंग एग्रीगेटर नहीं थे. The whole premise or thesis of nearby, Groupon, TryD, Little App, all those companies, कि आप एक रेस्टोरेंट हो, आपकी लीन आवर्स को फिल करने में हम हेल्प करेंगे, आपकी कैपेसिटी को ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करेंगे. दैट वाज द प्रेमाइस. फूड डिलीवरी के आने के बाद और जोमेटो, स्विगी या अदर एग्रीगेटर्स के आने के बाद वो प्रेमाइस चेंज होना शुरू हो गया. राइट, नैरेटिव ही चेंज हो गया. वो नैरेटिव ही चेंज हो गया. राइट, शुरू में नैरेटिव यही था. शुरू में नैरेटिव यही था कि ओके, यू हैव अ किचन, यू आर अ रेस्टोरेंट, अंडर यूटिलाइज्ड है, हम फूड डिलीवरी से आपकी हेल्प करेंगे. राइट, इनफैक्ट द एड ऑन इज कि आपको आपके टेबल्स भरे हुए हैं, पर फिर भी आपकी किचन की कैपेसिटी और बेटर हो सकती है, और खाना बाहर जाएगा, टेबल की जरूरत ही नहीं है. तो शुरू में सारा कुछ अच्छा ही था, पर जब हम देखना शुरू किया कि वो कमीशन 5%, 8%, 10%, 2018 में एवरेज कमीशन 14% थे, ऑलरेडी हाई था. So for the first time when I started speaking about it, people were like, you're just being, illogical about it. अंगूर खट्टे हैं. राइट, ठीक है कि लिटिल ऐप और आपके इस पास एक्सपीरियंस में फूड डिलीवरी नहीं हो पाया, तो आप कह रहे हो कि ये खराब है. ठीक है, तो I'll probably send you one of my 2019 का एक जो स्टॉक का वीडियो है. राइट, तो आई वाज स्टिल टॉकिंग अबाउट दैट वेरी थिंग ओनली. 6 साल हो गए इस बात को. राइट, वो 14% आज 32% है. 32% अग्रीमेंट लेवल पे. आई गेट सो मेनी कॉपीज ऑफ डे टू डे बैंक स्टेटमेंट्स और रेस्टोरेंट ओनर्स. तो वहाँ क्या होता है, एक कमीशन कंपोनेंट होता है, एक पेमेंट गेटवे कंपोनेंट होता है, एक नया कंपोनेंट अभी आया है ट्रांसफर फी, कि आपका पैसा है पर आपके बैंक में लैंड होना है, तो उसका भी छोटा सा चार्ज पार्शियली इंट्रोड्यूस हुआ है, सबके साथ नहीं हुआ. टाइमली, मतलब आज चाहिए तो इतना, कल चाहिए तो कम. नहीं, चाहिए तो इतना है, मतलब वो अच्छा. राइट, ठीक है. सो फिर उसके बाद जब आप ऑनबोर्ड हो जाते हो, सो आपको एक पिच दिया जाता है कि सर आपका पड़ोस वाला तो ऑफर दे रहा है. राइट, ठीक है, एंड आप नहीं दोगे तो विल पेरिश. आपको फोमो होता है, आप कहते हैं हाँ यार प्लीज ले जाओ यार, आप ही मेरे खुदा हो. राइट, ठीक है, तो आप पहला एक और बर्न देते हो. फिर थोड़ा कहते सर देखो थोड़े ऑर्डर बढ़ गए, बट आपका पड़ोस वाला एड्स भी ले रहा है, आप नहीं दोगे आप पेरिश हो जाओगे. तो 5वां कंपोनेंट आता है. तो इफ यू लुक एट द 5 कंपोनेंट्स, कमीशन, पेमेंट गेटवे चार्जेस, ट्रांसफर चार्जेस, मर्चेंट फंडेड डिस्काउंट एंड योर एड स्पेंडिंग, आई हैव सीन शीट्स द बर्न ऑफ 67%. राइट, और फूड कॉस्ट 33% थोड़ी होगा, फूड कॉस्ट इज वे हायर. फिर उनको ओपेक्स है. सो आई कम अक्रॉस सो मेनी ब्रांड्स नाउ जो पूरा क्वार्टर बिजी है बिकॉज द किचन इज बजिंग, ऑर्डर पे ऑर्डर आ रहा है. बट जब कोई अपनी बुक्स में डीप डाइव करता है, फिर उनका सीए कॉल आउट करता है कि सर ये धंधा क्यों कर रहे हो. ट्रू. राइट, सो दिस प्रेमाइस एक्चुअली स्टार्टेड वे बैक इन 2018. वो नैरेटिव बिल्ड होते होते वी ऑलवेज न्यू इट्स गोना बी वेरी अपहिल बैटल. राइट, और ऊपर से हमने एक और बड़ा पंगा ले लिया इस बार. वी टुक अ कॉशियस कॉल, हमें हम पैसा नहीं रेज करेंगे. राइट, ठीक है, एंड यू आर गोइंग अगेंस्ट द जायंट्स. राइट, तो उससे बहुत सारा फ्रिक्शन आया. राइट, ठीक है, बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज भी हैं, बहुत सारी फेलियर स्टोरीज भी हैं, बट वी आर स्टिल आई थिंक स्टिकिंग टू द थीसिस दैट वी वांट टू कीप ऑन एम्पावरिंग दोस हाइपर लोकल बिजनेसेस, एंड यही हम करना चाहते हैं. इनफैक्ट यू एंगेज यही था, शाउटलो का भी कोर प्रोमाइस यही था कि हम एग्रीगेटर हैं, पर हम ये उस तरीके से काम नहीं करेंगे. राइट, we were one of the earliest entrant with government backed ONDC. Right, so what UPI has been for payment ecosystem, government wants that ONDC should be the for the commerce ecosystem. So we're the second largest seller app on ONDC with 26,000 outlets across India. उसके ठीक है अपने challenges हैं, they are going through own turmoil, right? But whatever we do, one or the other way, it is going in that direction. That how we can empower them, how we can probably bring more money on the table for those hyperlocal players using technology. Now, as you said, these food entrepreneurs, कि अगर business model में आप deep dive करो, तो वो कहते हैं ना कि मेहनत करके लॉस कैसे कमा रहे हो. Yes. Yeah. I heard this somewhere. See, मेहनत करके, exactly. Yeah. adding to your losses. Nice one. I think I'm gonna steal that. True. मुझे I would want to know that what
is the business model of Shoutlo and YouEngage, and how does this company make money? So Shoutlo, I think I'll keep it aside for now, right? So YouEngage is our core focus. So YouEngage is a B2B SaaS technology company. Okay. So हमने अगेन फिर मैं आपको जोमेटो स्विगी पे वापस लेके जाता हूँ. हमने बोला 2018 में कि आप जोमेटो स्विगी के पास क्यों जाओगे? आई एम रियली सॉरी. तो उसके 3 कोर रीजंस निकल के आए. पहला रीजन दैट उन्होंने एक टेक बनाया है. 2025 में उसका कोई मोट नहीं है. टेक इज प्रीटी कमोडिटाइज्ड नाउ, राइट. दूसरा उनके पास डिमांड इंजन बिल्ट अप हुआ है, यूजर कम्युलेशन हुआ है. थर्ड, उनके पास दे आर एक्चुअली अ न्यू एज लॉजिस्टिक कंपनी. और थर्ड जो है वो एक्चुअली स्ट्रेंथ है. बहुत लोगों को बाहर से रियलाइज नहीं होता. दे आर एक्चुअली न्यू एज लॉजिस्टिक कंपनी. वी सेड ओके ये 3 चीजें कैसे करें. So we said okay, we will build multiple customer touch points. तो हमने उस प्रोडक्ट का नाम रखा YouEngage Edge. So YouEngage Edge is customer facing technology interface, right? Integrated with your back end POS system, your ERPs of the world, blah blah blah, right? So mobile apps is the thing right now. So mobile apps has been our core strength. So a lot of brands come to us जब उनको लगता है कि नहीं यार we want to have our own mobile app. इंडस्ट्री में डोमिनोज हैज बीन अ सक्सेस स्टोरी. कि जोमेटो स्विगी था, है, रहेगा नहीं पता. डोमिनोज डज 67% ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम देयर ओन मोबाइल ऐप, राइट. सो देन वी सेड ओके ये भी है. प्लस हम एक बड़े फनी सा वाइट स्पेस देखा दैट इफ यू सर्च फॉर अ रेस्टोरेंट, अब चैट जीपीटी के बाद क्या होगा या के बाद क्या होगा विल सी. बट अभी तक का जो लाइफ हम सब ने डिजिटल जिया है, हम गूगल में जाके एक रेस्टोरेंट को सर्च करते हैं. मैंने आज माई सोहो सर्च किया राइट यहाँ आने के लिए. तो वहाँ पे माई सोहो का वेबसाइट ना देख के एक एग्रीगेटर का वेबसाइट ऊपर रैंक कर रहा है. तो वो हमें बड़ा फनी लगा कि यार माई सोहो ट्रेडमार्क तो तुषार का है, राइट. तो तुषार का ट्रेडमार्क कोई सर्च कर रहा है, दैट मींस देयर इज अ ब्रांड रिकॉल ऑलरेडी. मैं उसका भी कमीशन दूंगा बिकॉज समबडी जस्ट डिड एफर्ट टू ऑप्टिमाइज एसईओ. हम बोले नहीं यार ये भी सॉल्व कर, राइट. सो हमने मोबाइल ऐप पहले किया, फिर हमने प्रोडक्टाइज एसईओ सॉल्व किया फॉर रेस्टोरेंट्स, राइट. कि सो दैट यार आपके ट्रेडमार्क का जो ट्रैफिक है एटलीस्ट वो तो लो, उसका कमीशन तो मत बांटो. फिर वो करते करते दिस बिकेम द वेरी कोर कॉम्बिनेशन. Now we have WhatsApp commerce. We also have in-store kiosk ordering used by Wow Momos, Bikaner wala kind of brands. We also have ONDC interface. So this comprises my commerce stack. फिर हमने बोला अच्छा मार्केटिंग कैसे सॉल्व करें, राइट. सो डिमांड जेन भी सॉल्व करना है. सो वी क्रिएटेड a product called YouEngage Prism, which is our remarketing engine, marketing automation engine. उसमें हम अभी न्यू यूजर एक्विजिशन में हेल्प नहीं करते, पर आपके एग्जिस्टिंग यूजर को रीमार्केट करने में बहुत डीपली हेल्प करते हैं. ओमनी चैनल लॉयल्टी प्रोग्राम्स बनते हैं, राइट. व्हाट्सएप कैंपेन्स ऑटोमेटिकली बनते हैं. बहुत सारा टू एंड फ्रो ऑटोमेटेड कम्युनिकेशन बनता जाता है. विद एआई बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है वो, दैट कि तुषार को कम्युनिकेशन क्या है, समीर को कम्युनिकेशन क्या है, इस समीर वेजिटेरियन क्या जाना चाहिए, उस तरह की चीज़ें. थर्ड पीस हम बोला ये सब तो ठीक है, डिलीवरी कौन करेगा. सो वी क्रिएटेड प्रोडक्ट कॉल्ड YouEngage Flash. उसका पहला बेसिक प्रीमाइस है कि राइडर ट्रैकिंग ऐप बनाते हैं, राइट, और अच्छा सा एक्सपीरियंस देते हैं कॉमर्स के अंदर. वो करते करते वी रियलाइज लॉट ऑफ पीपल हैड फायर्ड देयर ओन राइडर्स because when me and you probably were in college days or starting our careers, तो आपको याद होगा सबके ना पैम्फलेट्स होते थे जिस पे लिखा होता था कॉल करके घर पे ऑर्डर करें, होम डिलीवरी. इसी साइज के वो they were delivered. Yes. 300 रुपए के ऊपर फ्री डिलीवरी, राइट. और सबके आउटर के बाहर एक बाइक खड़ी होती है, राइट. For our nostalgia, Hot Millions, right. Hot Millions used to have so many bikes, right. तो जैसे जोमेटो स्विगी बड़ा मेन स्ट्रीम होना शुरू हुआ, तो एक पिच जोमेटो स्विगी की और आई कि अरे सर ये राइडर्स क्यों खड़े नहीं हुए, मैं हूँ ना, राइट, आई एम योर फ्रेंड. तो उन्होंने कॉस्ट रिड्यूस करने की कोशिश की, ट्रैकिंग धीरे धीरे, राइट. ठीक है, वो राइडर्स बिकेम ऑब्सोलीट, राइट. सम ऑफ गाइज केप्ट ऑन डूइंग इट, बट मोस्ट ऑफ पीपल सेड नहीं है इस फंक्शन की जरूरत ही नहीं है. So that was the time we started working with a lot of 3PL players. So pan India we work with everyone, with Rapido, Shadowfax, Porter, right. So अब ये suite हम इस तरीके से complete करते हैं कि there is commerce, there is marketing, there is logistic, and there is a complete ecosystem, right.
yes, with time of काफ़ी चीज़ें हुई हैं, I think might not be very relevant for your audience, but yeah, this is how we are trying to solve it, right? And for all those components, brands pay us a small SaaS fee, and हमने छोटा सा एक पेमेंट गेटवे के अंदर भी एक अर्निंग मॉडल बनाया, वो भी इंटेंशनल बनाया बिकॉज वी वर सीइंग लॉट ऑफ आवर कॉम्पिटिटर्स पोस्ट कोविड स्पेशली, everyone got desperate, a lot of people raised a lot of money. Unfortunately, some of them have now perished away because they were over commitments, right? कि हम ये फ्री में दे देंगे, हमें हाफ कॉस्ट में दे देंगे. इसे यार ये मॉडल सस्टेनेबल बनाना है, राइट? कि अगर यू एंगेज ही पेरिश हो गया तो मैं क्या हेल्प करूँगा, राइट? सो आई डोंट वांट टू ओवर कमिट, आई डोंट वांट टू मेक दोज स्टूपिड चॉइसेस कि मैं डेस्परेट होकर बोलूँ कि नहीं सर आप आ जाओ, मैं आपको संभाल के रख लूँगा, लेकिन मैं खुद रोड पे आ जाऊँगा. तो वी मेक अ वेरी स्मॉल फी फ्रॉम एवरी ट्रांजैक्शन एज वेयर, बट वो इतना स्मॉल है कि वो किसी रेस्टोरेंट को हर्ट नहीं करता एज कम्पेयर टू वॉट एवर दे सी इन इंडस्ट्री, राइट? So this is what we do. There is a small fee, there is a small success fee, there is a small communication fee, and that's a good business model. So apart from this, any other income which Shoutlo or You Engage develops from their clients? See, primarily यही है, right? So we have done few experiments around new user acquisition channels. We experiment with our in-house agency called You Engage Digital. बिकॉज ब्रांड से ये जो आप दे रहे हो वॉच, राइट, आप प्लग एंड प्ले करके दे रहे हो. हमारे से पहले मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री प्लेयर्स बड़े टेम्पलेटाइज्ड एप्स बनाते थे, राइट? सो उसमें बहुत इनोवेशन हुआ, राइट? सो हमने वी रियलाइज दैट इंडिया में ना जो रेस्टोरेंट्स है ना वो एक कॉमन इंडस्ट्री नहीं है. वी बेसिकली कॉल द माइक्रो किंगडम्स. हर किंगडम का जो राजा है उसका एक अपना ब्रांड थ्योरी है, राइट? वो अपने ब्रांड प्रमाइज के हिसाब से अपनी कस्टमर जर्नी, अपनी ब्रांडिंग, लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स करना चाहता है, जिसको हम टेक्निकली कहते हैं कि कस्टमाइजेशन चाहता है. अब एक तो है कि मैं IT सर्विसेज कंपनी बन जाऊँ, कस्टमाइजेशन करता रहूँ, फिर वो सोल्यूशन वाइबल नहीं रहता कॉस्ट वाइज. सो वी एंडेड अप क्रिएटिंग सम widget based architecture which give us a lot of flexibility. तो उससे ना वो पीस काफ़ी हद तक जो है सॉल्व हो गया. So people liked it, and now we have a capacity कि आप मेरे को अभी बोलोगे कि समीर आई एम 100 आउटलेट ब्रांड, तो मेरे को आपका प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, तो आप कितना टाइम लोगे, राइट? ठीक है. सो सेट किया, देखो हम किसी कंपनी के पास गए थे, IT कंपनी थी, वो कहते हैं हम 30 दिन में कर देंगे. तो हमारा वो बेंचमार्क 2 आवर्स है. सो मैं 100 आउटलेट का ब्रांड 2 घंटे में एप्पल, एंड्रॉयड, वेब, व्हाट्सएप, सारे इकोसिस्टम में आज में लेके जा सकता हूँ. 2 hours, plugged with payment gateways, plugged with your POS systems, plugged into logistic companies, right? So ये सारा कुछ हुआ. उसके बाद क्वेश्चन आया, वॉच है, राइट? डिमांड जेन कौन करेगा? सो डिमांड जेन हमने बोला एजेंसीज करो. इनफैक्ट फ्यू ऑफ आवर इनिशियल क्लाइंट्स, फॉर एग्जांपल लापिनोज पिज़्ज़ा, उसका वेरी फर्स्ट मिलियन डाउनलोड्स वाज ड्रिवन बाय अस. उसका परफॉर्मेंस मार्केटिंग भी हम करते थे, SEO बहुत डीपर हम करते थे. 1 million downloads के बाद we said that you are large enough, we'll probably help you to hire in-house team, but we want to keep on focusing on the platform, on the product, right? This is what we want to do for very long haul. ये component हमें लगता है आपको in-house लेना चाहिए, right? उन्होंने तो ले लिया, कुछ लोगों ने नहीं लिया. यहाँ पे भी Zomato Swiggy का एक है contribution, because if you notice any restaurant opening in India after 2015, right? बहुत कंपनी में marketing function exist ही नहीं करता. Because a lot of people open the restaurants with a very different motivation. कि आपको कोई Zomato में जानता है, कोई Swiggy में जानता है. Let's say I'm that guy. मैं आपके पास तुषार, आप रेस्टोरेंट खोलो ना, मैं बैठा हूँ. आप ये चीज़ अच्छी बनाते हो, है ना? आप चीज़ें अच्छी बनाते हो, रेस्टोरेंट खोलो, धंधा मैं लाके दूँगा. तो ये सारी कहानी में तुषार ने मार्केटिंग फंक्शन को कभी बिल्ड ही नहीं किया, राइट? तो अब ये प्रॉब्लम हमारे लिए भी है कि मैंने टेक फंक्शन तो दे दिया, लो कॉस्ट भी दे दिया, प्लग एंड प्ले भी दे दिया, पर मार्केटिंग फंक्शन का है. तो मार्केटिंग फंक्शन हमने यू इंडिया डिजिटल से काफ़ी सॉल्व करने की कोशिश की है, बट वी ऑल्सो रियलाइज दैट वो इफेक्टिवली जब तक इन हाउस नहीं है तो वो करना मुश्किल है. पिच बहुत सिंपल है. पिच ये है कि अच्छा आप जोमेटो स्विगी के साथ एक डिसेंट इनफ ब्रांड हो तो आप आराम से 10 लाख से लेके 1 CR तक का धंधा भी करते हो. अगर आप
10 लाख का धंधा भी करते हो हम्म। तो दैट मीन्स यू आर पेइंग एनीवेयर बिटवीन 2.5 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपया, विच ट्रांसलेट्स इनटू 30 लाख से लेके 60 लाख पर एनम। तो वो पैसा बचाने का मोटिवेशन सबका है, राइट? हर किसी के वो बॉटम लाइन को हर्ट करता है, लेकिन वो बचाने के लिए एक मार्केटिंग फंक्शन जो है अगर वो एग्जिस्ट नहीं करेगा तो आप ये पैसा भूल जाओ। एंड वी एक्चुअली स्टार्टेड सेइंग इट टू ब्रांड्स अपफ्रंट, राइट? सो लॉट यार ये बहुत अच्छा सोल्यूशन है, बहुत अच्छा सोल्यूशन है, बट इट्स नॉट अ मैजिक वॉन्ड. This still needs lot of effort from marketing side. If that is not happening, we might not be the best company for you, right? आपको वैनिटी के लिए ऐप बनाना है तो we are not the company. इनफैक्ट हमारे अपने जो कंपनी के नॉर्थ स्टार मेट्रिक्स हैं वो उस नंबर से जुड़े हुए हैं कि हाउ मेनी ऑर्डर्स and what is the GMV or what is the amount our restaurants are really earning. So जब पूरी कंपनी का DNA वो है तो we also want to safeguard ourselves from the brands or the clients who are not very serious about the marketing function, right? तो ये आपने क्वेश्चन ये पूछा था कि और कहाँ से करते हैं, तो एक रेवेन्यू स्ट्रीम ये भी रहा है, राइट? और बहुत सारी पार्टनरशिप्स हैं पूरे इकोसिस्टम में, वो भी हैं, राइट? तो और कुछ ने टैक्टिकल कॉल्स भी लिए, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपने जब स्पेशली धंधे के टर्म में बात की है, जब हमने 2018-19 में इसको कंसेप्चुअलाइज करना शुरू किया तो सबसे पहला क्वेश्चन ये उठा कि यार ये तो ठीक है, बढ़िया है, कमीशन बचाएंगे, ये सब करेंगे। सबसे पहले तो ये कहानी का हार्ट का है, तो हार्ट निकला कैटलॉग। अरे अच्छा, कैटलॉग कहाँ बनता है? तो निकल के आया बिलिंग पॉस सिस्टम से बनता है। अरे हाँ, बहुत अच्छी बात है, तो सारी दुनिया मोबाइल कर रही है, तो व्हाई डोंट वी लॉन्च अ मोबाइल फर्स्ट बिलिंग पॉस? हमारा ओरिजिनल प्रोडक्ट वो था, हमने बनाया, हमने बेचा भी कुछ एंड वेरी सून वी रियलाइज कि पहली बात है मोबाइल पे नहीं चाहिए, क्योंकि इसको ऑपरेट करने वाला एंड यूजर नहीं है, एक कैशियर है, माइट नॉट बी ह्यूजली एजुकेटेड गाय एंड माइट बी हॉपिंग जॉब्स वेरी फ्रीक्वेंटली, तो और उसको ऊपर से बड़ी स्क्रीन में बड़े बड़े बटन चाहिए, राइट? और ऊपर से देयर आर लॉट ऑफ प्लेयर्स हु आर ऑलरेडी सॉल्विंग इट, राइट? तो वी टुक अ टेक्निकल कॉल, वी सेड ओके यार ये तो शेल्फ ऑफ कर दो, and we became the neutral player who work with every POS player in India now. और उसका एडवांटेज हुआ ONDC में। ONDC में हम जो 26,000 आउटलेट्स तक चले गए विद इन 1 year, because every POS is integrated with us, and whenever ONDC came to them and said कि okay कैसे करना है, fortunately they said UEngage के थ्रू करेंगे। UEngage इंटीग्रेटेड है, ONDC में प्लग्ड है, तो हमें नहीं नए से बिल्ड करना, UEngage के साथ करेंगे। So that neutral image actually gave us a lot of tactical advantage, right? So ये actually I speak about this example a lot, so कई बार क्या होता है, founders कहते हैं सारा कुछ बना लो, right? But सारा कुछ तो बना लो, but you're still part of an ecosystem, right? आप उस ecosystem के बहुत सारे potential partners को threat करते जा रहे हो, and they're expecting they should help you back. There's no point, right? So वो छोटे सी एक टेक्निकल कॉल हैज़ बीन वेरी हेल्पफुल, राइट? येस, उस पर फ्रिक्शन भी आता है कभी कभार व्हेन वी वर्क विद सो मेनी पॉस सिस्टम्स, हर किसी के इंटीग्रेशन सेट अलग है, सबके रूल्स अलग हैं, बड़ा कुछ अलग है, बट सो फार इट हैज़ बीन इन फेवर ऑफ अस। So Sameer, now over to quick question format. I'll be firing a few questions and I expect कि आप उस पर short answers में clarity दो हमें। So when a hyper-local food company wants to, instead of opting for Zomato and Swiggy, wants to come on board to UEngage, sure. So what would be your moat pitch there? कि this is what you will gain, or probably let's just ask you a simple question. अगर वहाँ पे उसका burn X है, तो यहाँ पे कितना होगा? So यहाँ पे आपको ऑर्डर्स कम आएंगे, आपका बॉटम लाइन बेटर होगा, और आप कस्टमर डेटा के ओनर होंगे, ये मोट है। Alright, that's smart. धंधे की बात करते हैं, आपके मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स हैं विद इन UEngage. हैव यू एवर फेल्ट कि सब कुछ तो रोजी बहुत है, एवरीथिंग इज सो ब्यूटीफुल, बट ये मैंने क्या पंगा ले लिया? हैज UEngage एवर बीन इन अ टर्मोइल सिचुएशन? Yes, multiple times. Where the revenue is less, Yeah. and the expenditure and the salary cost is more. देखो इनिशियल तो बिल्कुल ही था, बिकॉज मैं थोड़ा सा लंबा को आंसर दूंगा इसका। ये क्वेश्चन चंडीगढ़ बेस्ड बहुत सारे फाउंडर्स
कई बार डिस्कस करते हैं मेरे से, you know Chandagiri ecosystem very deeply, right? We are blessed with lot of IT services companies, right? And अगर आप 1999 से लेके चलो from IDS to NetSmarts to all Net Solutions, right? So they have been the first generation of software companies from the region, right? They have done wonderfully for the region, right? सेकेंड जनरेशन आते आते ऐसा नहीं वो बहुत कोई ओल्ड हो गए, सो अमेजिंग गाइस, बट वो जो सेकेंड जनरेशन आया सो वो सारा उस हैंगओवर से आया, सो उस वजह से रीजन में प्रोडक्ट कंपनीज बहुत कम है। तो बहुत सारे आईटी सर्विसेज के फाउंडर्स कई बार मिलते हैं, कहते हैं यार हमने प्रोडक्ट करना है, राइट, ठीक है, क्यों करना है, हमने क्लाइंट्स के लिए प्रोडक्ट बनाए, हम तो बना ही लेंगे, राइट, ठीक है, बट डीएनए बहुत डिफरेंट है, डीएनए फाइनेंशियली कमर्शियली बहुत डिफरेंट है। आईटी सर्विसेज में जब तक पैसा नहीं मिलता कीबोर्ड नहीं प्रेस होता, राइट, प्रोडक्ट में एमवीपी से लेके, राइट, ठीक है, इनिशियल सारा कैपिटल आपको लगाना पड़ता है, द कैपिटल कैन बी ओन स्किल, राइट, मतलब अपना ओन स्किल तो है ही है, प्लस फाइनेंशियली भी शुरू में ड्रेन करेगा, राइट, और ऊपर से अगर आप इंडिया मार्केट के साथ आई मीन इन्वेस्ट कर रहे हो कि सारे इंडियन मर्चेंट्स हैं, पेमेंट साइकिल्स का इशू है, बहुत बहुत उसमें चैलेंजेस है, राइट, तो आपको बहुत देर पहले ही वेट करके चलना पड़ेगा कि दिस इज नॉट दैट बिजनेस कि मैंने एक ऐप बनाया और मेरे को पहला क्लाइंट ही मिला, 0 डे पे मेरे को 10 लाख रुपए देगा तो मैं ऐप बनाना शुरू करूँगा, कुछ नहीं हो रहा है सर, राइट, वो प्रोडक्ट मेरे को डेवलप करना है, अपने लिए करना है, शोकेस करना है, फिर मेरा क्लाइंट आएगा, राइट, तो साइकिल उल्टा है। तो मैंने आईटी सर्विसेज एचसीएल में काम किया है, कभी शायद फ्रीलांसिंग भी किया है, हमारी पूरी जनरेशन ने कभी किया है, बट मैंने कभी आईटी सर्विसेज स्टार्टअप नहीं किया, मैं जो भी किया है प्लेटफॉर्म ही किया हमेशा, तो मुझे प्लेटफॉर्म ही समझ आता है, राइट, तो जब प्लेटफॉर्म करते हो ना तो वो इस बार तो मेरे को बहुत क्लियर था कि इट माइट बी 6 months, इट माइट बी 12 months, वो मुझे फिगर आउट करना है, बट इट्स गोना बी बर्न, तो वो डीएनए थोड़ा सा वैसा सेट था शुरू में, यस, फिर जब थोड़ा रेवेन्यू किक इन करना शुरू हुआ, राइट, ठीक है, तो वहाँ पे हमने बहुत सारे एक्स्ट्रा पंगे भी लिए, राइट, तो ये भी एक लर्निंग है, और मुझे बहुत सारे मेंटोर्स ने बोला भाई डोंट यू थिंक यू आर ट्राइंग टू मेनी थिंग्स, बट वही होता है ना जब आप गलती खुद नहीं करते हो ना सो यू डोंट लर्न फ्रॉम इट, राइट, सो वी वर डूइंग यू एंगेज में 3 प्रोडक्ट्स, हमने एक सुबह उठ के एक सैलून का प्रोडक्ट भी खोल लिया, राइट, ठीक है, फिर ओएनडीसी हम कर ही रहे थे, एक दो कुछ और भी खोली, राइट, बिकॉज वी वर गेटिंग सम रेवेन्यू, राइट, यहाँ पे आपके स्लिप होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं, राइट, कि अब आप कॉन्स्टेंटली एक तरह से देखो अपसाइड भी है दैट वी वर कैरिंग दैट डीएनए कि जो पैसा आप अर्न कर रहे हो लेट्स कीप ऑन इन्वेस्टिंग इन दैट, राइट, ठीक है, बट वो करते करते वो लाइन कहाँ ड्रॉ करनी है वो कई बार ब्लरी हो जाती है, तो हमारे साथ ये ऑनेस्टली 2-3 बार हुआ व्हेन वी थॉट एंड वी डिड एनालिसिस कि यार ये ना हमें थोड़ी जल्दी रुक जाना चाहिए था, राइट, सारा कुछ सक्सेसफुल नहीं होगा, दैट्स ओके, राइट, ठीक है, बट वो कब रुकना था वो लाइन के क्रॉस हो जाती है, और ये हुआ 2 बार ऑलरेडी हो चुका है, राइट, शुरू में तो एक्सपेक्टेड था, उसको मैं तो वो बोलूंगा ही नहीं कि देयर वाज अ हर्डल, दैट वाज एक्सपेक्टेड, राइट, बट बीच में हुआ है वी केप्ट ऑन ओवर इन्वेस्टिंग, राइट, सो तो ये होता था कि पैसा फाइनली कम आ रहा है और आगे जा रहा है, राइट, एंड आई हैड टू आई थिंक then kept on putting money from my side, right, so but I think that's going to be part and parcel of it, right, so अगर आपको बहुत ही एक ऐसा ग्राफ चाहिए, मुझे नहीं लगता किसी को बिजनेस करना चाहिए, true, right? true, so this is going to be like this, you're going to be huge wins, but there are going to be lot of turmoil as well. Have you ever raised money? In You Engage, No. And in Shoutlo? In current ventures, no, not at all. Okay. So I have been investing via a few vehicles, but not raising any money this time. Okay. There's a lot of interest though, because the most of competitors in the space are in losses. But I think that frugal behavior has kept us grounded. So you have built efficiencies. I think so, right? So relatively, we are able to keep on, moving forward. Do you think with your current experience, knowledge, and your know-how in tech, today if you sit back and think what you've developed, are you extremely proud of it, or you think कि यार मुझे ये कर लेना चाहिए था? वो हमेशा रहता था, हमेशा रहता वो.
सो इट्स ऑलवेज यू नो कि मैं अपना 2019 का प्रोडक्ट देखता हूँ तो आई विल लाफ एट माई सेल्फ कि क्या बना दिया। एंड उस वक्त यू मस्ट बी, यू नो, हमें फील होता है ना, ऐसे होता है, ऐसे होता है, इट्स अ जर्नी राइट, ठीक है। सो मुझे लगता है वो माइक्रो इम्प्रूवमेंट्स नहीं खत्म होनी चाहिए। that's about any aspect of the life. if you were to go to zero today, everything finishes, but you still have your experience, knowledge, Sure. how long will you take now to cover those years to building the same wealth? ये काफी It's a very interesting question. very very interesting question. ये बहुत सब्जेक्टिव है Hmm. राइट, ठीक है। सो मुझे लगता है कि yes there are few levers that we all carry as an armor, but आपके ना लाइफ के सर्टेन जो जंक्शंस होते हैं राइट, जो मैं पहले रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी की बात कर रहा था, आपका रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी भी चेंज होता है। कईयों का विद एज बेटर होता है, कईयों का उल्टा ड्रॉप भी होता है राइट। सो लाइक आई सेड सम ऑफ द यू नो functions like कि are you married, do you have some obligations, do you have kids, you know, are you open to relocate to a new city now, right, are you open to probably spend 16 hours a day in office, right, so बहुत सारे factors हैं right, but मुझे लगता है कि I would love to do it again, right, so but बहुत सारे factors मेरे favor में अब होंगे, तो बहुत सारे factors हैं जो अब नहीं भी होंगे। I'm no longer 24 years old, right, so बहुत सारी चीज़ें जो फर्स्ट टाइम किक होता है राइट, ठीक है, शायद इस बार अप्रोच डिफरेंट होगा। You will have to probably reduce your risk and use more experience. या अब वो ये कह रहा हूँ, सो वो दोनों का एडवांटेज डिसएडवांटेज है राइट, ठीक है। सो रिस्क इज वेरी यू नो फनी इन दैट वे राइट, सो शायद वो रिस्क ना लो राइट, ठीक है, यू नो व्हाट इज अक्रॉस दैट रोड राइट, बट आप एब्सर्ड रिस्क लेते हो तो उसका भी नहीं पता, दैट्स व्हाई द वर्ड इज risk itself, right? So I think it's going to be very different from the way I've done it in when I was 24 years old or I was 32 years old. So now I'm going to be 40. So of course my approach will be different. But I would love to do it again. Have you ever thought of retiring? नहीं आता है दिमाग में, सोचा right, so सोचा, delete किया? yes, so there's a community I'm part of it in चंडीगढ़ में, तो I can't name the person, you know him very well. तो उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा था 3 साल पहले, और मैंने उनको एक नंबर दिया था, बोले सबीर कितना पैसा बैंक में होगा तू रिटायर हो जाएगा। This was my next question. तो वो नंबर मैंने उनको 3 साल पहले कुछ बोला था, वो नंबर शायद 1 साल में हो गया था राइट, ठीक है, तो पर नहीं हुआ। तो उसके बाद एक और नया नंबर बन गया। नहीं, मैं नंबर नहीं बना रहा हूँ ऑनेस्टली, मैं नंबर नहीं बना रहा हूँ, पर मुझे ये लगता है कि मैं शायद नहीं रुकना चाहूँगा। आई एंजॉय दिस, आई ऑनेस्टली एंजॉय दिस, आई एंजॉय बिल्डिंग टेक, I enjoy solving certain you know problems, and और मुझे लगता है बहुत ही कुछ करने को यार अभी राइट, तो अभी तो and generally we are not very large company right, so बहुत कुछ करना है। चलो forget retirement. If you were supposed to have a number in your mind कि यार this is my satisfaction point, इसके beyond if I earn, there are many things to do for community, for society, for tech, for anything. So any personal number which you have कि यार something which I have built for myself, this will sustain me, this will give me financial freedom. So ऐसा कोई आपके दिमाग में thought है? तो यार काइंड ऑफ बैकग्राउंड आई कम फ्रॉम ना राइट, ठीक है, तो जो आज भी है मैं तो ये भी नहीं सोचा था यार राइट, ठीक है, तो इसलिए वो नंबर नहीं आता दिमाग में राइट, ठीक है। थोड़ा उसमें विद टाइम देखो एक थोड़ा स्पिरिचुअल एंगल भी बिल्ट अप हुआ है, तो मैंने सोचना वो भी बंद कर दिया राइट, ठीक है। लिटरली ट्राई टू बी हियर। आप शायद मेरे से 2 साल पहले इंटरव्यू कर रहे होते ना, मैं पता नहीं कहाँ होता राइट, अभी भी हो जाता है वांजे हुआ है राइट, सो बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी हियर right, and I'm just trying to surrender to the whole process, because when I look back in my journey मैं कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाया हूँ, गुड बैड अगली हम नहीं कर पाते, बट यस हर किसी को रियलाइजेशन अपने अपने हिसाब से अपने अपने एक लाइफ में जंक्शन में होती है, शायद वो रियलाइजेशन बड़ा है, तो फॉर दैट रीजन मुझे लगता मैं वो नंबर कोई कंट्रोल कर भी पाऊंगा राइट, ठीक है। तो आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो राइट, सो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर द अपॉर्चुनिटीज आई हैव गॉटन राइट, and very grateful for all the learnings and the mistakes which have you know gone through me, where I have been that catalyst or channel right. तो यार वो इंसान को शेप अप ही करते हैं राइट, ठीक है। तो स्पिरिचुअली ऑनेस्टली मैं नहीं अब वो नंबर सोच पाता हूँ, क्योंकि मेरे को जो अभी भी नंबर है मैंने ये नहीं सोचा था राइट, ठीक है। सो एज अ किड फ्रॉम अ स्मॉल टाउन जो एक लोन के साथ जॉब शुरू करता है राइट, ठीक है, एंड आई डू रिमेम्बर शुरू के दिनों में ना किसी ने मेरे को HCL में
एक सीनियर ने फ्लैट लिया उस टाइम में 25 लाख रुपए का, मुझे लगता था मैं कि हो ही नहीं सकता मेरी लाइफ में, राइट, ठीक है, 25 लाख रुपए मेरे को लगता है ये पॉसिबल ही नहीं है, राइट, ठीक है, तो बस मुझे लगता है मेरे बस में तो उतना ही है कि कैन आई जस्ट बी हियर, राइट, कैन आई बी रिस्पेक्टफुल फॉर द अपॉर्चुनिटीज आई एम गेटिंग, कैन आई बी रिस्पेक्टफul फॉर ऑल द learnings which are coming in my way, right, or can I be very focused about the input I am going to give to those opportunities. उसके बाद मेरे को नहीं पता क्या होने वाला, हम में से कोविड कौन कंट्रोल कर पाया था, राइट, सो मैं मेक माई ट्रिप की एग्जांपल देता हूँ, they did bloody everything in awesome way for good 2 decades. One fine day flip happened. तो नहीं पता हमें, क्या पता नेक्स्ट क्या होने वाला है, तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी हियर, ट्राइंग टू जस्ट improve myself every day. देखेंगे क्या होगा. you know why I'm trying to ask you this, because हर चीज का ना एक reference point, एक benchmark होता है. Maybe there's a number which okay हमें खुद नहीं पता हम evolve कैसे करें उसके, and जो आज probably एक wealth created है तो वो कितनी उसकी मान्यत है वो हमें नहीं पता शायद. In one social conversations, one gentleman said to me, for me, मतलब he was talking about himself, कि अगर मैं जिंदगी में बिना सोचे कहीं भी ट्रैवल कर सकता हूँ ना बिजनेस क्लास, एंड विदाउट थिंकिंग आई कैन गो एंड ईट इन एनी रेस्टोरेंट, दिस इज व्हाट माय लाइफ अचीवमेंट इज, कि मैं आई विल नॉट हैव टू थिंक अगेन. सो एनी बेंचमार्क यू हैव इन माइंड, क्या दिस इज समथिंग व्हिच आई, और यू कंप्लीटली इनटू अ डिफरेंट स्पिरिचुअल जोन अभी? ये बिकॉज हर किसी का वॉक ऑफ लाइफ डिफरेंट है ना. मेरे वॉक ऑफ लाइफ में मैंने ये भी नहीं सोचा था ना, राइट, ठीक है, तो आई एम ऑलवेज वेरी ग्रेटफुल फॉर व्हाटएवर इज हैपनिंग, राइट, सो मुझे रिटायर हो जाना चाहिए आइडली उस हिसाब से, राइट, ठीक है, बट मुझे लगता है मैं बहुत कुछ और कर सकता हूँ, राइट. अगर मैं जनरली नंबर्स की बात करूँ और मैं अपने बहुत मैथमेटिकली मैं अपने एक्सपेंसेस की बात करूँ, कीपिंग इन माइंड इन्फ्लेशन, कीपिंग इन माइंड एजुकेशन ऑफ माई किड्स और उनके फ्यूचर सडन एक्सपेंसेस, राइट, उनको थोड़ा सेव गार्ड करने की बात, मेरे को रिटायर हो जाना चाहिए, राइट. सो दैट्स अ बेंचमार्क आंसर. हाँ, पर नहीं है वो, मुझे नहीं पता कल सुबह उठ के क्या होने वाला है, राइट, ठीक है. अगेन लाइक आई सेड, एवरीवनस देयर ओन वॉक ऑफ लाइफ, एंड आई डू अंडरस्टैंड द थीम ऑफ द पॉडकास्ट हैज टू बी वेरी फैक्चुअल, बट ऑनेस्टली मुझे लगता है वो हर किसी का ना एक अपना अपना वॉक ऑफ लाइफ है, अपनी सराउंडिंग है, राइट. I know people and I have been fortunate to live in multiple cities in my life. US भी था, तो Delhi multiple cities, I mean पूरा NCR, Bangalore भी था, right, ठीक है, चंडीगढ़ again is not my hometown, अमृतसर भी था, कुछ और भी एक दो places थे. So I have met some of the very rich people, right, and very calm, right, and I met a lot of people being very flamboyant about their money, right. तो वो सारी चीज़ें कुछ कुछ आपको रब ऑफ करती हैं in a good bad ugly way, right. So that's my perspective. Yes, लेकिन जब मैं पहले बोला कि it's not like कि I am adverse और कि यार और पैसा आएगा तो मैं बोलूँगा नहीं चाहिए, right. Of course I would have been doing something else. So whatever I'm doing, we are for profit company. I want to keep on creating more jobs. I want to probably keep on opening more office locations. अभी के लिए, right? और हो सकता है ये मेरा थोड़ा short sightedness भी हो अभी के लिए, पर अभी के लिए मुझे इतना ही आता है, right? ठीक है, मुझे लगता है मैं बस ये करता रहना चाह रहा हूँ, right? ठीक है, फिर देखेंगे आगे क्या होगा, right? And yes, ये डिबेट मेरा बहुत होता था, कोविड में बहुत होता था. Lot of people told me that Paytm कौन छोड़ता है, right? And चंडीगढ़ से प्रोडक्ट कौन बनाता है, अच्छा प्रोडक्ट है तो पैसे कौन रेज नहीं करता है, राइट, ठीक है. तो ये मुझे ये समझ आया, राइट, ठीक है, उसके भी अपने गुड बैड अगली सब कुछ है. मुझे ये आई एम वेरी बुलिश अबाउट इंडियाज ओवरऑल इकोसिस्टम, राइट. द होल UPI थिंग, द होल 5G थिंग, पावरफुल डिवाइसेस, नाउ AI, राइट. तो आपको मेट्रो में वैसे भी जाने की जरूरत नहीं. दिस हैज एम्पावर्ड ऑल ऑफ अस एज अ होल जनरेशन to just go at a very far off place, right, and build a world class product. True. Right. वो अगर मुझे एस्पिरेशन है, ठीक है, तो मेरे को वो उल्टा जाने की है, राइट. सो बैंगलोर इज ओवर क्राउडेड नाउ, राइट. मुझे समझ ही नहीं आ रहा लोग जाना क्यों नहीं हट रहे, राइट. आई लिव देयर माई सेल्फ, राइट. वी हैव लॉट ऑफ बिजनेस देयर. आप 5 शहरों के हिसाब से कंट्री नहीं चला सकते. वी नीड टू डिवर्सिफाई, वी नीड टू गो डीपर,
and we are a pretty rich company, country, right? तो वो मुझे किक देता है कि क्या उसमें मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा, राइट? क्या वो कुछ इनेबलमेंट में कर पाऊंगा, राइट? सो फॉर एग्जांपल यू गाइस इन टियर 2, टियर 1 में है, कोवर्किंग है, बहुत है. आई एम श्योर दे वुड हैव बीन सम रीजन, business reasons as well to go into tier 2, right? वो मुझे किक देता है शायद. आई थिंक मुझे लगता है कि मैं वो चीज़ मैं कर पाऊंगा तो मुझे मजा आएगा, बिकॉज मेरे पर्सनल जर्नी में पैसा आ रहा था, बड़े साल पहले भी आ रहा था, और जितनी मेरी ज़रूरतें हैं ऐसा नहीं है, मतलब आई थिंक आई लिव फाइन, राइट? तो बहुत कम भी ज़रूरतें नहीं है, पर हैं, वो पूरी होनी शुरू हो गई थी, राइट? तो अभी मैं जब बार बार स्टार्टअप कर रहा हूँ, बार बार कोई बिजनेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं पे देर इज सम अदर लार्जर गोल, राइट? सो जो मेरी अर्निंग के साथ लिंक नहीं हो पाएगा. मुझे लगता है वो वैसे भी हो जाएगा, अभी तक भी होती आई है. अगर वो मैं कुछ भी उसमें डेंट डाल पाया, छोटा सा भी, तो वो तो और बेटर ही होगा, पीछे तो नहीं जाता. Awesome. I think this was a very empowering conversation, Samir, with you. A lot of learnings and how founders like you are building ecosystems and empowering people in tier 2 towns. And hyper local tech, extremely well done. And all the best to you, more power to Thank you. you, Tushar. And Thank we you look so much. forward to more products, bigger territory, more offices, and more growth. Thank you. Thank you for so much, coming. Tushar. Good Thank luck. you. Thank you.